So anyone has given any thought process on that? For the stages of business? Stages of the business plus special situation patterns, and how do you get to the stages of the business, and what actually does happen. So I got a very good example जो मैंने एक thread भी बनाया है in the business group, which we should read about it, not annual reports and not all the things. This is this business. So have a look at the P&L statement of the business. और यहाँ पर कहीं पर जाके इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है 2021 में. और आई थिंक 20 में हुआ है. बट चेंज जो ये 21 to 22 में काफी ड्रास्टिक हुई ओपीएम परसेंटेज. If you see this, this stock price had gone to $7. Now it's more than $500. There was a management change, and one of the top business groups of the country went and bought this company. TG Power है, आपको पता ही चल गया होगा. Now look at the drastic. अदर इनकम काफी एक्स्ट्रा वो तो रीशफलिंग किया था, पहले उनको लॉस लिया, फिर अदर इनकम आया, वो ठीक है. Now look at the top line from year till year. डिक्लाइन. Okay. Now look at the top line from year to year. 18 तक सेल्स बढ़ रहा था बट प्रॉफिट नीचे हो रहा था. नाउ इट्स अगेन स्टार्टेड. यस 18 तक सर सेल्स भी कम हो रहा था ना, बढ़ कहाँ रहा था. मैनेजमेंट यहाँ कहीं चेंज हुआ है इस पीरियड में, इस पीरियड में 5,000 8,000 आया था शायद. And it was not paying dividends. Now suddenly, like the Tata Motors pattern, it has now started paying a dividend. But stock price from $7-8 going to $500 is something very strange. और अगर आप टेक्नोफंडा पैटर्न कोई भी फॉलो कर रहे होते तो बेसिकली आपने ये वाला ब्रेकआउट लिया होता, which still would have been good. 100 rupees का 500 rupees हो जाता, which still would have been good. But anything you could have got this at $5, $7, $20 would have given a very different kind of a scenario to your portfolio. This is Murugappa Group came in and bought this company, and they were having losses. The book value was also negative. 2,081 crores book value इनका negative हो गया था because of losses and because of rejig and because of all teething problems. Debt had skyrocketed. आज की तारीख में डेट खत्म है, तो मुरुगप्पा ग्रुप ने आके इसको टर्न अराउंड किया. तो तब टर्न अराउंड होगा, यू विल सी दीस काइंड ऑफ थिंग्स. So suddenly a 1,300 crores loss goes up to 1,600 crores profit. A turnaround situation, a new management, and still he was not paying dividends because he was redeploying the money back into the business. One, to make these negative reserves go positive. Second, to pay down the debt, right? And look at the trend of his ROEs, ROC जो भी बोलो, 4 साल चल गया. And you got a management change, you got a big group coming into the business, you got ROC trend, you got money which we was not paying out as a dividend and putting it back into the business. To see, there was no dividends paid out. So ऐसा रोज रोज नहीं होता है, but in special situations also this such kind of things come. But when they do come, they give you a very good alpha for maybe for the next few years, which you might not be able to generate in your portfolio. So this is an example of a mix of special situation pattern and what we were trying to understand. A good business. Now this business was not a good business, but it became a good business. So businesses change where they are on the life cycle of the
चार्ट जो हम बिजनेस चार्ट देख रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. What we need to do is we need to understand the life cycle of a chart. Okay. Now, other examples of these kind of situations. तो एक्चुअल जो एसेंस ऑफ स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग है वो ये है, जहां पर हमारे को ऐसा अच्छा बिजनेस मिले. हमने एक ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज का देखा था, जहां पर ये चीजें हमको समझ आए, और नॉट लाइक जीरो सेल्स एंड जीरो रेवेन्यूज, वो जो ब्लैक टू व्हाइट करने के लिए कंपनीज उठाते वो नहीं. स्पेशल सिचुएशन है बट वहां पर आपको ये अल्फा नहीं मिलेगा जो ऐसे बिजनेस में मिलेगा. लुक एट दिस वन. ये बिजनेस भी गुजरात बोरोसिल से बोरोसिल रिन्यूएबल डीमर्जर हुआ था. बोरोसिल लिमिटेड एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स. पहले नाम था गुजरात बोरोसिल. देखो, और इसमें भी क्या हुआ था, वंस द डीमर्जर वाज डन, आई थिंक देयर वैल्यू वाज व्हाट, 4 रुपए. वो 4:700 bucks. So even if you are able to catch one in your lifetime or maybe two in your lifetime, your work is done. Ingredients more or less सारे सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. What say? ये हालत ग्रीन लैम्प में थी जो हमने देखा था लास्ट कॉल में. ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, सेम थिंग. वी हैव डिस्कस दिस. सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ डीमर्जर, आपको फोकस क्या करना है कि एम आई गोइंग इनटू दिस ट्रेजेक्टरी. मेरा स्पिन ऑफ जो है, इफ माई स्पिन ऑफ जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग की वजह से उसकी पिटाई होगी, कैन इट गो टू दिस ट्रेजेक्टरी? एंड द आंसर इज येट. बी मोर इंटरेस्टेड. अब ये हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का भी एक स्पिन ऑफ हुआ था. इट वेंट टू 200, नाउ इट इज अगेन बैक टू 200. व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर हियर? Is it going up? Is it going down? Am I audible? Down, sir. What is the amount of dividend it is paying? Zero. What is the amount of revenues he has? What is the amount of profits he has? It is 0.2. क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं है ना, इसको तो मैं स्टार्टअप ही नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ लैंड है, एसेट वैल्यू है. तो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग से, जो हमको पता है डीमर्जर पैटर्न में क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग से जो ये इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है, वहां से ये बाउंस बैक हुआ. अब 2020 से 2024 आ गया. अभी इट टुक हिम 4 years to get back to the same level. क्या ये ऊपर जा सकता है, क्या नीचे जा सकता है? आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज नो बिजनेस. The perception of the value of the asset, which is valued at 1,000 crores on the book and maybe 15,000 crores in market value, the perception of the value of the asset of the business is changing the stock price going up and down. तो क्या ये वो बिजनेस है जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकता हूँ? बोलो बोलो. No, sir. जनरली नो, जनरली इसीलिए नो. तभी मैं कंपनी की जब से बैड बिजनेस को अलग करते हैं, गुड बिजनेस को अलग करते हैं. जब तक इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, तो जो डीमर्जर कंपनी उसके अंदर जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा या डेवलपमेंट नहीं हो रही विद रिगार्ड टू इंक्रीज इन बिजनेस और समथिंग, तब तक उसको ट्रैक करें सर. आपको डीमर्जर्स में 90% ऐसे मिलेंगे, चाहे आप R30 पढ़ो या कुछ पढ़ो, जहाँ पर आपको 90 to 95% कचरा मिलेगा. यस. मैं नहीं कहता कि कचरे में पैसे नहीं बनते, कचरे में पैसे बनते हैं. बट इज इट सस्टेनेबल? नाउ लुक एट दिस. ये क्या स्टेज में है?
Declining. Sure. But if the business is declining, stock price is going up. If the business is declining, stock price is going up. Should I be happy to buy this business? The debt from year to year is constant. Business is declining. So much of cash is kept on the books. The cash is accumulating. If the cash is accumulating, definitely my return metrics should not be that great. But the return metrics is great over here. But इसको पता नहीं अपने कैश के साथ करना क्या है. Business is declining. तो क्या मुझे ये ब्रेकआउट्स में जाना चाहिए? हाँ, मुझे ये ब्रेकआउट्स में अगर मैं उसी शर्त पे जा सकता हूँ, if I'm trading, is this a business where I can keep it for the next 5-6 years? सोचो. अल्टीमेटली तो डिविडेंड देके या कुछ भी करके खलास करेगा ना. तो गवर्नमेंट की समझी ना, डिविडेंड नहीं दे रहा ना. अब यहाँ से यहाँ जब इसका वो मार्जिन अचानक टर्न अराउंड हुए, the margins are turned around. Sales is down, margins have turned around. एसेट बेचा होगा. नहीं, एसेट कुछ है ही ना, बेचेगा क्या? तो जो भी रीजन है, 22 डेज में मार्जिन्स टर्न अराउंड. ये आगे आपका मार्च का महीना, अप्रैल महीने में रिजल्ट आए, टर्न अराउंड. वी गेट फोमो. इतना बड़ा मूव आ गया, मैंने मिस कर दिया. आई मिस्ड. वी गेट फोमो बिकॉज ऑफ दिस. है ना? तो क्या मुझे इन फोमो में आना चाहिए? क्या मुझे फोमो में आना चाहिए? ये देखो, देखो क्या हुआ. Business was growing, but the asset quality after a point did not grow because it is a cyclical steel business. Was अभी तो है नहीं. But FOMO क्या है? FOMO ये है. ये तो स्टॉक प्राइस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, न्यू मैनेजमेंट आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, टर्न अराउंड हो गया. So are you getting a sense of combination of all these kind of things can give you a good jump up? Combination. क्या बोल रहे? Or if you know a business, a good business or a large cap company where it goes to a decline, maybe because of some temporary problems, and you are well aware that these temporary problems would be corrected and it will revert back. वो टाइम है उसको लेने का. When it is making a higher high, वो टाइम है उसको लेने का. अब आंसर आपके पास, आपके दिमाग में खुद आना चाहिए. देखो, और वो तभी होगा when you would be able to understand two things: narratives जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, और नंबर्स जो हमने सेशन नंबर 141 में लास्ट सेशन में देखा. अगर ये चीज क्लियर है तभी आपके वैल्यूएशन का फंडा आगे जाके क्लियर होगा. So what is special situation investing? It is not about investing into kachara companies. It is a startup. It is a thing where you can start looking at things. और एग्जांपल्स देखने, जितनी ज्यादा केस स्टडीज करेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, उतना आपको समझ में आएगा. सर एक पॉइंट. यस सर. हाँ, क्या बोल रहे हो? एक पॉइंट बोल रहा था, जैसे अभी सीजी पावर आपने दिखाया ना, एंड नाउ इट इज लाइक
अपन बैकएंड पे डेटा देख रहे हैं कि हाँ वो ऐसे गया, बट अगर आज के सिनेरियो में मैं ये सोचूं कि ये सिचुएशन सेम मेरे सामने आई है, सीजी पावर वाला, तो मैं उसको कैसे फिल्टर आउट करूंगा या कैसे उसको देखूंगा, तभी मैं आगे पैसा बना पाऊंगा, राइट सर? तो हम डीमर्जर्स एक केस को ऐसे इसी केस को सीजी पावर कोई एग्जांपल एज अ केस स्टडी वैसे डिस्कस कर सकते हैं। डीमर्जर्स जो भी मेरे पास डीमर्जर्स आ रहे हैं उसको कौन ले रहा है, नया मैनेजमेंट कौन है, he was the respectable group of the country and क्या हो रहा है, क्या ये नया कोई बिजनेस चेंज कर रहा है, क्या वो लोन चुका रहा है, क्या वो कोई एसेट्स को बेच के लोन चुका रहा है, क्या वो बिजनेस को लाइटन अप कर रहा है, क्या वो क्या चीज कर रहा है जिससे आरओई आरओसी बढ़ेगा, does the management have a good track record of integrity? These are the questions you will be required to ask at that time. पर ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट हमारे को डिसलॉज कर देता है। एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखो देखो Am I audible? Yes sir, yes sir. If you are, sir. ये एड्रॉइड जिसका सबने आर लिया था, लुक एट द ट्रेंड ऑफ योर मार्जिन्स। ग्रॉस तो इसमें होगा नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी आईटी कंपनी है। लुक एट द ट्रेंड ऑफ योर मार्जिन्स। नाउ लुक एट द डिविडेंड्स व्हाट ही इज गिविंग। देखो डिविडेंड तो दे ही नहीं रहा, कुछ होगा तो देगा ना। लुक एट हिज रिजर्व्स and continuously he's picking up capital because his reserves are negative and वो कैपिटल उठा के अपने रिजर्व में डाल रहा है। और जो इसका आरओई आरओसी है फ्लिप फ्लॉप ऊपर नीचे, इज इट प्रिडिक्टेबल? and because of this continues your promoter is moving out। $35 करोड़ का मार्केट, 35 का मार्केट कैप है, 20 करोड़ का एसेट है, अर्निंग नथिंग। अब आप मेरे को बोलोगे यार आपने तो इसमें राइट इशू करा है, वो टाइम पे आपको वो चीज सिखानी जरूरी थी कि एक एक्सपीरियंस तो लेके देखो। अब आपने राइट इशू का एक्सपीरियंस ले लिया है, कौन से राइट इशू में जाना है और कौन से को अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन आने लगेगा दिमाग में। कौन से स्पेशल सिचुएशन को जानना है और कौन से को अवॉइड करना है, कौन सा डीमर्जर में जानना है और कौन से को अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन आने लगेगा दिमाग में। तो मेरा सजेशन ये है कि जो लास्ट सेशन किया है उसको बार बार देख लो, आपको ये चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। और जब आपको ये फिल्टर करने का तरीका आ जाएगा, you would be much better off than what you are today। I think I have shared my point, what I wanted to share। And how can this be done? By two things: by practicing more, by reading more। And what to read? जो कंपनीज पास्ट में हाइपर ग्रोथ स्टेज या स्पेशल सिचुएशन के बाद हाइपर ग्रोथ स्टेज में जा चुकी है, आप उसमें इन्वेस्टेड हो या नहीं हो वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आप उसको देख के उसको समझ सकते थे अगर आप उस टाइम पे होते इस सिनेरियो में मार्केट में। सो क्लियर विद सेट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। हाँ जी, ये सर। बाकी लोग? जी सर, ये सर। आई थिंक सर जो आपने हाँ क्या बोल रहे? आई थिंक सर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने बताया ना कि जैसे हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल टारगेट करना है डीमर्जर मर्जर को, सो विद जो आपने सुबह भी बताया था जो वीडियो में,
तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, क्योंकि काफी सारे मर्जर डीमर्जर डेली बेसिस पे आते हैं, वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन एवरी और ईच एंड एवरी स्टॉक विद द लिमिटेड कैपिटल, बट अगर ऐसा एक भी या दो भी हमने अगर फिल्ट्रेशन करके निकाल लिया, देन वी कैन मेक ए वेल्थ। सो दैट मीन्स आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना है, आपको अपना फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और आज सुबह से हम इसी की बात कर रहे हैं। राइट सर। और ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया कब होगा, कैसे वो स्ट्रॉन्ग होगा? गो डेप्थ इन बिजनेस और उसके सभी पैरामीटर्स पे अगर आप देखते हैं। नहीं, मैंने तो सुबह से तुम्हें नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस की बात तो करी नहीं इन डेप्थ में। तो ये क्राइटेरिया कैसे बेस्ट होगा, जब हम बार बार जाके उस चीज को, उस एक्सरसाइज को, उस वर्किंग को करेंगे। अग्री। So that is why the CG Power thread. I am not saying go back to 2010 and read everything in CG Power, कुछ है ही नहीं। हाँ सर, मैं भी यही पॉइंट बोल रहा था जो आपने सुबह बोला था ना कि ऑलरेडी जिस बिजनेस में हो गया उसमें क्या हुआ था उसको ही थ्रेड बनाते हैं, तो जैसे सीजी पावर ले सकते हैं अभी ना। बनाया ना, हाँ। बनाया ना। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पिछले 25 साल का नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, खत्म होगी कहानी। पिछले 2-3 साल का डीमर्जर से स्टार्ट करते हैं कि डीमर्जर जिस दिन हुआ था या जो भी सिचुएशन हुआ था। डीमर्जर से पहले वो क्या वजह थी जिससे उसकी वैल्यू टूट रही थी, और वो एक ऐसी वैल्यू पे आके मिल गया कि अगर मेरा वो डिक्लाइनिंग बिजनेस था तो मुरुगप्पा ग्रुप ने उसमें क्या देखा ऐसा। If I was Murugappe Group and I was given this opportunity at that time, what did I see? Similarly, for Eveready Industries में जो मैनेजमेंट चेंज हुआ, डाबर मैनेजमेंट आया, डाबर के नाम से वो 80 रुपए का शेयर 300 रुपए हो गया। ना सर, बट सर हमारे सामने एज ए रिटेलर तो हमारे सामने तब आएगा ना जब उसमें कोई सिचुएशन मतलब अनाउंस होगा अंडर रेगुलेशन 30 की। नहीं, जरूरी नहीं अंडर रेगुलेशन 30 R30 की रिपोर्ट में आए या नहीं हो, वो मतलब नहीं है। अच्छा, R30 is just a manual filtered of announcement. These are not daily की 5000 announcements आती है, कितनी पढ़ सकते हो? इसलिए तो कीवर्ड्स होते हैं, इसलिए तो we go and focus on keywords. Right. Practice one pattern, practice it at one time, don't flip flop to several other things. And to practice one pattern, you need to go and look in the past how these patterns have played out. Like Syntex industry का एक demerger हुआ था, it did not play out well and people lost a good amount of money in that. सर ये आइडिया सही है, सीजी पावर का करते हैं जैसे आपने बताया ना। देखो सीजी पावर का करने के लिए 1-2 साल पहले जब नया मैनेजमेंट आया, सिमिलरली HLE ग्लास कोड जब नया मैनेजमेंट आया, so special situation with the hyper growth stage of business, with reinvestment opportunity of the moat of the business, with not returning capital, with growing that capital, वो सारी चीजें। So my suggestion is if you can understand in one time, good enough. If you cannot understand in one time, watch session number 141 2-3 times. जब तक ये चीज आपके दिमाग में आने नहीं लगेगी, आपके फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया स्ट्रांग नहीं होंगे। और जैसे ही ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया स्ट्रांग होने लग जाएंगे, इट विल जस्ट टेक यू फ्यू सेकेंड्स। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो क्या मुझे इसमें जाना है कि नहीं जाना है, कि करना है कि नहीं करना है। राइट सर। एक चीज तो मुझे भी पता है, इतनी अनाउंसमेंट्स डालते हैं, अनाउंसमेंट्स वाले टाइम में कोई भी पूरी पढ़ता भी नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, नहीं पढ़ते ना। आई थिंक सब रीड करते हैं, अपने टाइम से रीड करते हैं, मतलब मिस होती है सर, उसमें सब तो नहीं पढ़ सकते। हाँ मुझे पता है। तो अभी तक तो मैं आपको उस मोड में लेके चल रहा था जहां आपको कहते हैं ना भर के कंटेंट मिल रहा था। आप ओवरवेल्म देखिए, इतना कंटेंट पता नहीं कैसे करेंगे। अब स्लोली एक स्टेप आगे चल रहे हैं जहां पर हम फिल्ट्रेशन देख रहे हैं कि मुझे क्या फिल्टर करना है और क्या नहीं करना है। Now, if my filtration criteria does not allow me to look into that business, just avoid it, ना। क्या जरूरत है उसको एनुअल रिपोर्ट खोल के भी पढ़ने की भी। और ये सब नंबर बेस्ड काम है, तो जो भी राइट इशू या डीमर्जर या जो भी चीजें आपको पता चल रही हैं कि यार ये अनाउंसमेंट में आया या ग्रुप में आया या जहां भी आया, क्विकली यू कैन ओपन अप द नंबर्स and do your calculations at the blink of an eye. So it will take you just few seconds
और अगर वो मोटा मोटे वो पैरामीटर्स पे वो चीज बैठती है, गेट डीपर इनटू इट। तो अब एक सीधी पावर का एग्जांपल ले लें, आप सीधी पावर में एक्साइटेड हो गए, बट सीधी पावर में एक चीज थी कि वहां पर मुरुगप्पा ग्रुप की बैकिंग थी विच हैड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार कोई ऐसा मैनेजमेंट आएगा जिसके पास इतना तगड़ा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो हर What did Borgappa group see in this कि वो उसने पिक किया? यही आपने बोला तो है, तो बट ये तो क्वेश्चन है सर, ये तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है, यही तो आपको ढूंढना है। नहीं, बट अच्छा ढूंढना है। ओके ओके ओके। अगर कुछ डायरेक्शन दे दें तो क्या ढूंढोगे? मैं 2 साल पहले के एनुअल रिपोर्ट में ढूंढोगे कहाँ आप वो इसको? You see, it is just a strong management. किसी का कन्विक्शन होगा तो लिया होगा या यही तो ढूंढना है सर, यही तो ढूंढना है। अगर मैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा शायद मुझे ना मिले, शायद मुझे 1-2 रिपोर्ट पहले उसको स्टोरी समझ में आने लगे, बिकॉज अ बिजनेस इज एन अनफोल्डिंग मूवी, नॉट अ स्टिल पिक्चर। it must be actually addressing some vacuum in the time जो pick किया, and he may be thinking that he'll be able to do it. I think हाँ देखेंगे, but I think it will be something on these lines. It should be something on these lines. Now you know the way, na? Now you just have to get more clarity. Similarly, it happened in Eveready. Eveready, the Dower management via the proxy private limited firms picked up 19% stake and they studied the market for 2 years. And after that, they went and cost 20% to give an open offer. आपने कुछ ऐसा बोला था कि बहुत बाद में किया, बहुत बाद में पता चला स्लोली कर रहे थे। यस यस, उनको भी टाइम लगा। नाउ दे आर बाइंग Religare. So a new management, Dabur is a very good reputed firm. Why did he buy Eveready? And अगर आपको और पुराना जाके देखना है तो I remember Imami bought Zandu Pharma in 2008. And Imami was a market cap company of just 1,000-2,000 crores. और वहां से उनकी रैली स्टार्ट हुई and they went up to 25,000 crores. But I think for Zandu they overextended themselves. I don't know. सर थोड़ा है ना, I don't know. I think ये सब चीजें जब पढ़ेंगे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी एटलीस्ट दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा है ना कि करना क्या है। Am I right? Yes. और जब करना क्या है और जब ये चीजें देखना शुरू करेंगे, जब समझना शुरू करेंगे, तो नेम्स कैन चेंज, पैटर्न्स विल रिमेन द सेम। And even if you are able to find one company in 1 year or maybe one company in 2 years, and it goes into the next 3-4 years of hyper growth stage, आप खत्म, you are free, then you don't need to be in the market। अगर आपने अच्छा एलोकेशन कर दिया and you are not dislodged with your conviction by chart prices going up and down or by quarterly numbers going up and down. So probably quarterly numbers going down would be an opportunity if the problem is temporary. Right, sir? So any questions on this? सर तेजस नेटवर्क एक बार देखोगे आप सर? देखा भाई मैंने सर वो 2020 में जैसे टाटा ने इसको एक्वायर किया है ना? हाँ किया। और सर उससे पहले ये कंपनी छोटी थी साइज में लेकिन प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद जब टाटा ने एक्वायर किया तो सेल तो इसकी सर मतलब काफी इंक्रीज हुई, लेकिन कंपनी लॉस में आ गई, जैसे लॉस मेकिंग है अभी भी पिछले 3-4 सालों से, मतलब 3 सालों से जब से टाटा इसमें एंटर की है। हाँ तो वही सर मतलब डेट भी बढ़ रही है लेकिन प्राइस फिर भी चलो उस हिसाब से टाटा की वैल्यूएशन मिल गई इसको। तो ऐसी कंपनीज को कैसे देखेंगे कि अभी लॉस में है, मतलब आफ्टर एक्वायरेशन जैसे? डेप्ट कोई इतनी खास तो नहीं बढ़ रही है, 20-22 करोड़ की डेप्ट थी, वो अभी 130 करोड़ की डेप्ट होगी। लेकिन इसके सामने अगर मैं देखता हूँ नहीं वो तो सही है सर मार्केट कैप कंपेयर, लेकिन ये जैसे लॉस में रिजर्व्स के हिसाब से, रिजर्व्स के हिसाब से तो डेप्ट कोई इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ जी। अब अगर ये लॉसेस जैसे अभी लॉस कर रही है तो उसको कैसे देखेंगे सर ऐसे? वही बोल रहा हूँ, अगर ये लॉसेस में आ रही है तो उसकी वजह क्या है?
अगर ये कंपनी लॉसेस में आ रही है तो उसकी मोटी मोटी वजह क्या है? सर कंपनी का फोकस अभी पूरा मतलब रेवेन्यू पे ही है, जैसे ज्यादा एसेट्स बढ़ा रही है अपने जितने ज्यादा से ज्यादा तो इसका मतलब है कि उसको कैपेक्स कर रही है सर। इसका मतलब ये है कि उसको मार्केट शेयर लेना है, अगर उसका फोकस रेवेन्यू पे है तो। यस सर। हाँ हाँ, कैपेक्स हुआ है ना, 600 करोड़ के लेकिन एसेट्स सर लेके मैं जाके मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि सर ये और मैं ये पूछ रहा और था, जैसे जब से एंट्री हुई तभी से मतलब लॉस में आ गई कंपनी, है ना? जैसे कोई अभी बात नहीं, हमने कोई जितने बात प्रीवियस केस स्टडीज की है कि कोई बड़ा ग्रुप एंटर होता है तो मतलब टर्न अराउंड हो जाते हैं मार्जिन्स में, ये वो इसका इसका सर उल्टा हो गया जैसे नहीं नहीं, परफॉर्मेंस पे। लॉस में क्यों है? अच्छा, ये कंपनी लॉस में क्यों है? ये कंपनी लॉस में क्यों है? पहली चीज, मैनेजमेंट तो सर कह रही है कि वो कंफर्टेबल है, जैसे हाँ जी। पहली चीज डेप्रिसिएशन देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दूसरी चीज, अब ये यहाँ तक तो 20-22% प्रॉफिट बना रहा था। यस सर। यहाँ पर ये प्रॉफिट कम हो गया। यहाँ पर मेरे मटेरियल कॉस्ट क्या है और यहाँ पे मेरा मटेरियल कॉस्ट क्या है? यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है और यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? अब डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है, अगर डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है और वो तनख्वाह मोटी ले जा रहा है तो वो थोड़ी बोलेगा आपको कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल क्योंकि मेरे को तो तनख्वाह मिल रही है। सर जैसे मेरे तो मेरा ऐसी कंपनीज को आज आज की स्टेज में कैसे देखेंगे, मतलब अभी जो इनकी जैसे रेवेन्यू ऐसे ही तो तो काफी देखेंगे और बढ़ रहा कैसे है देखेंगे? मतलब। अरे ऐसे ही तो देखेंगे और कैसे देखेंगे? ये तो बता रहा हूँ, और क्या नहीं बताऊँ। फंड 11,000 करोड़ मार्केट कैप, 11,000 करोड़ मार्केट कैप है। तनख्वाहें की कंडीशन देखो कहाँ से कहाँ चली गई जब से टाटा ने इसको इंक्वायर किया है। तो ऐसा तो नहीं है इस कंपनी से जूस निकाल के कहीं और जा रहा है। और सिर्फ टाटा की वजह से हम नाम की वजह से हम अटके हुए हैं इसके ऊपर। एंड यस सर। वट एवर कैश फ्लो इज मेकिंग इज इन्वेस्टिंग दिस कैश फ्लोस, तो वो अपने एसेट्स बढ़ा रहा है। तो व्हाट इज द बिजनेस अबाउट? व्हाट इज द बिजनेस अबाउट? फिक्स एसेट्स फ्रॉम 80 करोड़ हैज गॉन टू 1,000 करोड़। सारा का सारा पैसा कैपेक्स में घुसा दिया है, चाहे वो डाइल्यूशन करके है, चाहे वो प्रॉफिट लेके है, चाहे वो डेप्ट तो है ही नहीं इसमें, चाहे वो कुछ भी करके है। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट का व्यू 5 साल का हो और मैं 5 महीने में देखना चाह रहा हूँ या 5 दिन में देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आएगा ना। वही है सर। तो तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई इसकी? वाई द सैलरी इज गॉन अप टू हाई? वाई द सैलरी इज गॉन अप टू हाई? नंबर्स ऐसा बोल रहे हैं, अब एक्चुअल क्या है वो तो रिपोर्ट्स में पता चलेगा। और अगर मैं तनख्वाह की बात करूं तो पहले तो मेरी तनख्वाह कितनी जाती थी? एम्प्लॉय कॉस्ट वाज व्हाट, 19% ऑफ 750 करोड़ सेल्स। नाउ आई एम 43% ऑफ 920 करोड़ सेल्स। So this number is definitely higher than this number. Yeah, this number. So what does my annual report say? अटक गया मेरा सिस्टम। The average percentage increase of KMPs in financial year 34%. Average increase 36%. Remuneration. अब संजय नायक जी हैं और ये हैं क्या कहते हैं, अर्नब रॉय. So they are getting 2.55 crores, 1.81 crores. And perquisites. जरा देखो, मजे की बात देखो, कितनी तनख्वाह मिलती है इसको? 2.5 करोड़। और इसको कितनी मिलती है? 1 करोड़ 81 लाख, 1 करोड़ 81 लाख। इनका रिटायरमेंट फंड में इतने चला जाता है, व्हाटएवर दिस रिस्ट्रिक्टेड। तो देखिए आप उसको पर्क्स तो देखो, उसका 50 करोड़ का पर्क्स है। 50 करोड़ का पर्क्स है। तो 50 करोड़ का अगर पर्क्स है और 2.5 करोड़ की सैलरी है तो मोटा मोटा 52-53 करोड़ तो ये ले जा रहा है। 53 करोड़ अगर ये संजय नायक लेके जा रहा है, तो अगर मैं 53 करोड़ इसमें ऐड कर दूं
पॉजिटिव में हो जाओगे। पॉजिटिव में हो जाओगे। So, अगर my employee cost is 43%, so what is 43% of 920 crores? 360 हाँ 9 4 जा 36 360 370 कुछ होगा 370 400 395 ओके 400 करोड़ की तनख्वाह है। 400 करोड़ की तनख्वाह में 920 करोड़ के सेल्स, समझ नहीं आता। और उस 400 करोड़ की तनख्वाह में से ये कितना 20% तो यही ले रहा है भाई। Now what are these? In the view of inadequate profits according to the security have been paid emission according to the। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैं सैलरी तो रूल्स के हिसाब से दे रहा हूँ, पर जो मैं ये परक्विजिट्स दे रहा हूँ उसके ऊपर से ये वाले while it was granted during earlier years determining accordance with the provisions of income law। बोलो something more great over here। The value of these perquisites includes the perquisite value of stock options RSUs exercised stock options का लफड़ा है ये। The value of this perquisite includes the perquisite value of stock options exercised during the period which was granted during earlier years, determined in accordance with the provisions of the income tax 1961। Accordingly, the value of the stock options granted during the period is not included। तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल शेनैनिगन्स आ गया। कुछ पहले के भाई साहब के पास स्टॉक ऑप्शंस पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू ये पर्पसेस के अंदर इन्होंने दिखा रखी है। पहले ही उसने लिया, अभी तो लिया है, पहले का कैसे हो सकता है ये परक्विजिट्स? क्यों लास्ट ईयर का नहीं हो सकता? 2022 का नहीं हो सकता? 2023 का नहीं हो सकता? 2000 ये तो मार्च में आती है एनुअल रिपोर्ट, तो जनवरी के महीने का नहीं हो सकता? ओके तो ये तो 3 महीने के। और ये साल में भी उसने 8,78,000 जो है वो करा है। तो दिस गाय इज वेरी गुड ना। इज सैलरी अब ये और सैलरी आ गई इसमें। देखो जी इसमें कितने परसेंट, ये तो 1 करोड़ 2 करोड़, ये कोई ज्यादा खास नहीं है। एंड सैलरी इंक्लूड्स फिक्स्ड पे एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल पे। वाओ, तो टाटा है, टाटा की परफॉर्मेंस नेगेटिव तो काय का परफॉर्मेंस? एक मिनट परफॉर्मेंस, धंधा तो मेरा लॉस कर रहा है तो काहे का परफॉर्मेंस? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो तो नेगेटिव है तो काय का परफॉर्मेंस? कॉर्पोरेट हो गया ना, कॉर्पोरेट के तो अलग अलग अपने झमेले होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिर्फ एक ब्रॉडर पिक्चर की वो लॉस क्यों कर रहा है टाटा के आने के बाद, अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर अभी 400 करोड़ की सैलरी है, 900 करोड़ के रेवेन्यू पे मैं 400 करोड़ की सैलरी दूंगा क्या? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? maybe not, because I have done a capex from 80 crores to take my assets to 1000 crores। हो सकता है कि मेरे वो 1000 करोड़ के जो एसेट्स हैं वो चले नहीं हैं। गेटिंग इट? यस सर, यस सर। सो सर एक बात कहना था। दो बोलो सर। ये जो कॉन कॉल रहती है ना सर, अचानक SMS अलर्ट रहता नहीं हमको, मतलब कॉन कॉल की कोई वो नहीं देती है, वो तो अचानक दिख जाता है तो इसलिए ऐड हो जाती है सर। नहीं, उसके लिए हमने क्या कर रखा है सर, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है जिसमें सबको एक अलर्ट चला जाता है। उसका नाम है कॉल इंटीमेशन ग्रुप। धनंजय जी, राकेश सर को प्लीज उस ग्रुप में ऐड कर दो। धनंजय जी हैं क्या कॉल में? हो नहीं? यस सर। राकेश सर को प्लीज उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। नहीं हूँ उसमें मैं हूँ उसमें। नहीं सर, ये राकेश सर नहीं, राजीव दीक्षित सर। हाँ ठीक है सर। तो राजीव सर उसमें क्या है कि उसमें आपको एक अलर्ट आ जाएगा। सर ठीक है सर। तो ये सेशंस दोनों देख लीजिए, इसमें एग्जांपल्स हैं और पहले सेशंस के अंदर हमारे लर्निंग्स हैं जो हमारे को ये बताएंगे कि हमारे को फिल्ट्रेशन कैसे करना है। ये सर कुछ साइट से कुछ आइडिया देती हैं कि उनके जो CEO वगैरह या डायरेक्टर लोग उनकी सैलरी या रेम्यूनरेशन के लिए बात कर रहे होते हैं, तो फिर ये तो क्या अपने लिए कोई यूज रहेगा क्या? ये ज्यादा होना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई, या किसी एंगल में अच्छी बात है? सर वैसे 2-3% के आसपास अगर रेम्यूनरेशन है तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो खराब है।
अच्छा और सर, वैसे एक ही एक बंदा मेरे साथ काम करता था, पिछले 10, 12, 14 बरस काम किया, आर हाँ जी। श्रीकांत। ये पहले सैमसंग इंडिया में कंट्री हेड थे, इसके बाद ये बाहर चले गए थे। बाहर से आने के बाद फिर उन्होंने फिलिप्स इंडिया ज्वाइन करी थी। इसके बाद ये ना बाद में रिलायंस ज्वाइन कर लिया था सर एज ए डायरेक्टर, और आपका रिलायंस फ्रेश का कॉन्सेप्ट देखते थे, मिस्टर आर श्रीकांत, और शायद इनको 8 करोड़ रुपया सेल ली थी सर। नहीं तो रिलायंस फ्रेश का प्रॉफिट कितना है? नहीं, हम अभी अभी ये नहीं बात करें, चूंकि जब ये सिल्ली की रेमुनरेशन की बात चल रही थी। सैलरी ये मैं 8 कंपेयर करोड़ is not much. मैं 8 कंपेयर कर करोड़ is not पाऊंगा much. नहीं सर, सैलरी मैं कंपेयर कर पाऊंगा मेरे टोटल प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर मेरी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की मेरी 10 जो टॉप मैनेजमेंट की तनख्वाह है, अगर वो 2%, 4%, 5% तक भी है तो ठीक है। जी, लेकिन अगर वो ओके 8% टोटल टर्नओवर का है तो वो इतना अच्छा नहीं है, और 10 के ऊपर लॉ भी अलाउ नहीं करता। हाँ लेकिन कुछ समझ गए, कंपनी 3, है 4, 5 तक है तो ठीक है ना। हाँ, और कुछ कंपनी ऐसी है जो 10 के ऊपर भी ले लेती है कमीशन के रूप में। सैलरी तो रखती है नीचे और कमीशन देके जी वो जी सैलरी को ऊपर ले जाती है। जी 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 जी। तो वो फिर बदमाशी है। टॉप सैलरी देखें राजीव जी, टॉप सीईओ सैलरी देखें, उसमें आप देखिए क्या क्या फिगर्स आता है हीरो होंडा और इनकम के। ऑफ कोर्स बट दे आर विद इन द परसेंटेज आई होप। नहीं, आज इस पे वर्किंग करेंगे, बस आज वर्किंग करेंगे, अगली कॉल मैं में हम दिखाता इसका हूँ उत्तर देंगे मैं सर। दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने एक कंपनी का नाम लिया था चमनलाल सेठिया, याद है किसी को? हाँ लिया था सर। चावल चावल का काम करते हैं। जी जी जी। तो चमनलाल सेठिया में मैंने एक रैंडम एनुअल रिपोर्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, एनुअल रिपोर्ट ही नहीं आ रही इसकी। तो 2014 की एनुअल रिपोर्ट आ गई हमारी स्क्रीनर में जाके बीएससी की वेबसाइट से। तो आपको मेरा जो स्क्रीन है वो ओके, स्क्रीन विजिबल। दिस इज चमनलाल सेठिया। सैलरी बेसिक सैलरी शुड बी 50,000 रुपीज अ मंथ, पेबल मंथली। वेरी गुड। ओवरऑल रेम्युनरेशन, ओवरऑल सैलरी 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 सैलरी। ये देखो, ये बंदे की सैलरी थी 4 लाख रुपए फिक्स कंपेंसेशन। फिर सैलरी, फिर इसकी भी 4 लाख रुपए, फिर इसकी आ गई। नेक्स्ट इसका एक टेबल आएगा सैलरी का, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू फंड। यहाँ पर जो सैलरी के टेबल्स होते हैं ना, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे कि जब अपनी सैलरीज ये दिखाते हैं ये लोग, तो सैलरी को तो रखते थे ये उसके नीचे, लिमिट के नीचे, लेकिन कमीशन दे दे के कमीशन इतना ज्यादा चला जाता था कि पूरी सैलरी की ऐसी की तैसी हो जाती है इसमें। एक मिनट ढूंढ के दिखाता हूँ। सैलरी नहीं, वो वर्ड सैलरी नहीं है, वर्ड रेम्युनरेशन है। रेम्युनरेशन हाँ, ये तो शायद शेयर होल्डर आ गया। ये देखो कितना आ गया ये इनका रेम्युनरेशन टेबल है। 20 लाख, 48 लाख, 48 लाख, 6 लाख, 24 लाख, 24 लाख, ये टोटल आ गया है। और इनके जो परक्विजिट्स हैं, जो इनके वो कमीशंस हैं, वो यहाँ को कितने आ रहे हैं? 31,77,000, यहाँ कम आ रहे हैं। तो इसी चीज को अपन चलते हैं पुराने रिपोर्ट्स के अंदर। पुरानी रिपोर्ट्स के अंदर अगर अपन देखते हैं, काफी मजेदार है इनका केस स्टडी। ये डेटा ही नहीं खुल रहा यार, यहाँ 15-16 का क्या चक्कर है? वेबसाइट से लेता हूँ। महारानी राइस कहाँ पर है इनका इन्वेस्टर ब्लॉग? इन्वेस्टर और प्रोडक्ट्स मीडिया, अरे वाह, ऑल प्रोडक्ट्स बल इंक्वायरी। चमन लाल मीडिया में होगा, हो सकता है मीडिया में हो।
है ही नहीं। चमनलाल सेठिया फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट कौन सा देखें? 2015 देख लेते हैं, होता है क्या? वेरी गुड। 2016 वेरी गुड। बात ही खत्म हो गई, डेटा ही नहीं तो क्या देखूं? 2017 देख लेता हूँ। वाह, लगता है बीएससी का सर्वर भी होली बना रहा है आज। सर स्पेलिंग बोलो ना रेम्यूनरेशन की। स्पेलिंग बताओ ना मेरे को, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राकेश सर, ओ राकेश सर, Trying to find from here. रेम्यूनरेशन। REMU कर दीजिए सर, REMU से कुछ भी नहीं शुरू होता। हाँ REMU, हाँ शॉर्टकट 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 कहाँ गया भाई? Now see the amount of salary what these guys take versus others. कितना गुना इनका रेशियो है? डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स देखो, देखो सैलरी और देखो कमीशन। ये मैं बोल रहा था आपको। सैलरी कितनी है? 1.98 करोड़। कमीशन कितना है? 4 करोड़। ठीक है, तो जो रूल एप्लीकेबल होगा 5% का या 10% का, वैसे 10% उतनी होता है सैलरी दे देंगे। ये। जी जी। हाँ बाकी उतनी सैलरी दे देंगे, बाकी कमीशन से दे देंगे। हाँ, तो जो रूल एप्लीकेबल होगा ना, वो रूल इस सर फिगर पे एप्लीकेबल होगा। ये फिगर 10% से कम होना चाहिए। अभी ये हम देख रहे हैं शायद 2017 देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं? 17-18। तो 17-18 में 17-18 में PNL में देखते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 42 42 करोड़, 42 करोड़। अभी 42 करोड़ के सामने अगर मैं 1.98 करोड़ देखता हूँ तो 42 का 10 हो गया 4 करोड़ 30 लाख। तो मेरा 5% हो गया 1.98, लगभग। हाँ तो बहुत अच्छा हो गया है तो देखने के हिसाब से। बट एक्चुअली ये 1.98 प्लस 4 है, जी 5.98 जी है, 6 पकड़ो। जी तो जी ये तो 10% से भी ज्यादा हो गया। प्लस इसमें ये 24 लाख तो चलो मैंने जोड़ा ही नहीं, इसके परक्यूजिट्स अलग है, तो ये तो 6.5 करोड़ हो गया। तो 42 करोड़ के अंदर से 6.5 करोड़ तो मैनेजमेंट ही ले गई। अगर ये 6.5 करोड़ नहीं लेके गया होता और 5% लिया होता तो ये 4.25 करोड़ तो मेरा लगभग 46 करोड़ का पैट आता था ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट अपनी जेब भरने में ज्यादा इंटरेस्टेड है शेयर होल्डर को रिटर्न कमाने की जगह। जी जी जी। सैलरी, तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट साफ सुथरा है कि गफला है। जी जी जी। 48 लाख सैलरी 1 करोड़ कमीशन, 48 लाख सैलरी 1 करोड़ कमीशन। अभी एक मजेदार बात और देखो, अभी चमन लाल सेठिया जी मेन ओनर हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है। विजय सेठिया उनका बेटा होगा। जी जी। तो इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इसके पास एक्सपीरियंस इनसे कम होगा, दोनों की सैलरी बराबर। राजीव सेठिया, तीनों के सैलरी बराबर कमीशन बराबर। कमललाल जी के नाम पे तो कंपनी है और ये कितने टाइम से करोगे, इन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे कंपनी के लाइफ साइकिल बिल्कुल में। सही। सो शुड कमललाल जी भी गेटिंग अ कमीशन? कमीशन तो वो होता है कि जो आप ज्यादा वर्क प्रोग्रेस या वर्क एक्सपीरियंस, और ये हमेशा से चमनलाल सेठी ऐसे ही है, हमेशा से। तो आई होप दिस गिव्स यू सम आइडिया ऑन मैनेजमेंट सैलरी। ठीक सर।
Any more questions before we close? दूसरा No सर, एक questions? जो ना ट्रेडिंग में हाँ बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेम डे में बाय सेल बाई करते और थे सेल दोनों करते रहते हैं। एक ही एक्चुअली प्राइस पे। ये जी ये लगभग एक ही प्राइस पे। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होगा कि आपको आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स क्रिएट करा जा रहा है। वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो एक्चुअली वो है, क्या कहते हैं, आर्बिट्राइजर्स हैं, जो सिर्फ आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करके चार्ट्स को अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि चार्ट्स वाले को तो चाहिए रहता है ना कि मेरा ब्रेकआउट हो, उसमें वॉल्यूम आए, तभी तो चार्ट वाले को कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर उनको कुछ उल्टा किसी को फंसाना रहेगा या कुछ करना रहेगा, तो वो आपको तो चार्ट अच्छा दिखा के, वॉल्यूम अच्छा दिखा के आपको अटका देंगे, फिर आप बैठे रहो। सर पर्दे के पीछे इतनी साजिश चलती रहती? क्यों नहीं चलती सर? वो एक पिक्चर आई थी ना, उसमें क्या बोलते थे, सब गंदा है पर धंधा है ये। क्यों नहीं चलती? अच्छा, माना इनके छोटे से रेट में अगर अंतर हो तो ये तो इनको ट्रेडिंग हो आर्बिट्राज का सकती है इनको आर्बिट्राज का भाई, जैसे 10 लाख शेयर लिया, 10 पैसे सर। 15 पैसे का फर्क हो गया, तो इनको तो आर्बिट्राज मिल गया ना, इनका तो काम हो गया उस दिन का। जी जी। और आर्टिफिशियल वॉल्यूम आ गया, तो चार्ट वाला तो बोलेगा कि यार इसमें तो वॉल्यूम आ गया, चार्ट वाला तो पागल हो जाएगा कि ब्रेकआउट विद कन्विंसिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट। पर्दे के पीछे की कहानी ये है। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं ठीक है फ्रॉम माय साइड सर। चलो सर, मेरा भी भाई मेरे को बुला रहा है संडे के दिन। थैंक बहुत यू। रात